everyone, myself Dhatya. Today I am going to discuss one of the physics part which is motion with you, and I will make you understand this chapter in a very easy manner. So stay calm, don't be stressed and please learn patiently. ये वीडियो मैंने आपको मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए लिया है जिसमें कार एक एंड से दूसरे एंड में मूव हो रही है. ओके, टुडे आवर टॉपिक इज मोशन. सो व्हाट इज अ मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if its position changes with time. So we can say that this car is in motion. Now to begin with the exercise, first we have to go through the summary of the chapter. Now today our subject is motion. What is a motion? If a body changes its position with respect to time and its surroundings, then the object is said to be in motion. Now our topic is motion in a straight line. That is when a particle moves along a straight line. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन में. एंड इट इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मीन्स वो स्ट्रेट ही होगा. नाउ नेक्स्ट इज मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ, अलोंग सर्कुलर पाथ. व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with a uniform speed, then its motion is along a circular path and it changes direction continuously. Then to find its speed, we have to divide distance divided by time. So what is distance here? 2 pi r and divide by time t. So we will get the speed of that circular path. Now our next topic is terms related to motion. So our first term is reference point. What is a reference point? A fixed point with respect to time which the given body changes its position, then it is said to be रेफरेंस पॉइंट. नेक्स्ट इज पोजीशन. कोई भी पॉइंट जो फिक्स है, पर्टिकुलर पॉइंट, उससे अगर ऑब्जेक्ट की लोकेशन डिफाइन की जा रही है तो वो जो पॉइंट होगा वो पोजीशन होगी. थ्रू दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू अबाउट रेफरेंस पॉइंट, ऑब्जेक्ट्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. ऑब्जेक्ट जहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है उसे कहते हैं इनिशियल पोजीशन, और ये जहाँ पे कार मूव हो रही है तो वो उसका पाथ लेंथ है, और जहाँ पे कार फाइनल पहुंच रही है तो वो उसकी होगी फाइनल पोजीशन. सो इससे हमने क्या सीखा? इनिशियल पोजीशन, पाथ लेंथ और फाइनल पोजीशन. नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस टू क्वांटिटीज which are scalar quantity and vector quantity. What is scalar quantity? It is a physical quantity which depends on magnitude, that is numbers. एक एग्जांपल लेके देखते हैं. फॉर सपोज इफ यू हैव ट्रेवल समवेयर फ्रॉम योर होम, देन अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सो व्हाट डू यू रिप्लाई? देन यू वोंट टेल दैट 42 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन नॉट. हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आई हैव ट्रेवल 420 किलोमीटर. मीन्स ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी. और ये जो 420 किलोमीटर है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई कर रहा है, बट नॉट द डायरेक्शन. And some examples of the scalar quantity are mass, time, distance, speed, etc. Then what is a vector quantity? It is a physical quantity which depends upon both, that is numbers as well as distance, as well as direction. So एक example लेके देखते हैं. For suppose if you have traveled a straight short path in a specific direction, then हम कह सकते हैं that I have traveled 15 kilometer towards west. मीन्स ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज बोथ, दैट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. एंड सब एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी आर वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एटसेट्रा. नेक्स्ट इज डिस्टेंस. इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी and its SI unit is meter. It is a type of scalar quantity and it is always in positive. Now our next term is path length. It is the length of the curve joining the initial and final position along with which the particle moves. मीन्स वो एक कर्व की लेंथ होती है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव होता है. Now let's come to displacement. The shortest possible distance from the initial and the final position of the body, and its SI unit is meter. It is a type of vector quantity and it can be positive, negative or zero. Now let's come to types of motion. There are two types of motion, which is uniform and second is non-uniform motion. The object travels equal distances in equal intervals of time. It is said to be uniform motion.
then the object which travels unequal distances in equal intervals of time, then that motion is said to be non-uniform motion. Now let's come to rate of motion. The ratio of distance traveled by an object and time taken is called rate of motion. Now let's come to speed. Okay, distance traveled by an object in unit time, it is called as speed, and its SI unit is meter per second, and it is a type of scalar quantity. And speed, the formula of speed is distance divided by time, and it is always be positive. Now types of speed. First is uniform speed. If a body travels equal distances in equal interval of time, तो वो क्या होगी, constant speed, और उसे uniform speed भी कह सकते हैं. Then second is non-uniform speed. If a body travels unequal distances in equal interval of time, then it is also known as variable speed or non-uniform speed. Next is average speed. It is the ratio of total distance traveled by an object to the total time taken, and it can be referred as the formula of S1 plus 2 S2 etc. then divided by T1 plus T2 and etc. And next is instantaneous speed. Object की speed during its motion. Now let's come to know velocity. The displacement of the body per unit time is said to be velocity. The formula of velocity is d divided by displacement divided by time, and its SI unit is meter per second. It is a type of vector quantity. It can be positive, negative or zero. Now let's come to know types of velocity. Uniform velocity. If an object travels equal displacement in equal interval of time, then it is known as constant velocity. Then non-uniform velocity. If an object travels unequal displacement in equal interval of time, then it is known as variable velocity. Then average velocity. The average rate of change of position of an object with respect to time is said to be average velocity, and the formula of average velocity is average velocity is u plus v, where u is initial velocity and v is final velocity divided by 2. Now acceleration. Rate of change of velocity of a body is known as acceleration. The formula of acceleration is v minus u divided by t, and its SI unit is meter per second square, and it is a type of vector quantity, and it is taken as positive if it is in direction of velocity, negative if it is in opposite direction of velocity, and 0 when it is moving with constant velocity. And it can be negative acceleration, negative acceleration को क्या कहते हैं, deceleration or retardation. Then let's come to know types of acceleration. Uniform acceleration. If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal interval of time, then it is uniform acceleration. Then non-uniform acceleration. If an object travels unequal changes in velocity in equal interval of time, then it is said to be non-uniform acceleration. Now equation of motion. First equation of motion is v is equal to u plus at. Second equation is s is equal to ut plus half at square. Then third equation is v square is equal to u square plus 2as. तो ये सारे इक्वेशन को हम बाद में डिटेल में समझेंगे. उससे पहले स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस देख लेंगे और टाइप्स ऑफ ग्राफ. Now the difference between speed and velocity. Velocity, it refers to the displacement of a given object over a time interval. Velocity displacement को refer करती है, while speed refers the distance moved by an object over a time interval. Velocity has a specific direction, while speed doesn't have any direction. Velocity is equal to displacement divided by time, while speed is equal to distance divided by time. Velocity can hold a negative value, while speed cannot hold a negative value. Now let's come to graph. यहाँ पे दो ग्राफ दिए गए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के, और इसमें भी दो टाइप के, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक यूनिफॉर्म स्पीड वाला है और एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में. फर्स्ट हमें डिस्टेंस को सबसे पहले वाई एक्सिस में लेना होगा और टाइम को एक्स एक्सिस में. और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड वाला है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. बट जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका ग्राफ वेरी होगा. नाउ लेट्स कम टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ. पहला ग्राफ दिया गया है यूनिफॉर्म मोशन का, और दूसरा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, और तीसरा वाला यूनिफॉर्म
नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन वाला होगा तो वो पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, और सेकंड में मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ओरिजिन में से पास होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। और थर्ड वाला मीन्स नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये फर्स्ट में स्ट्रेट लाइन है बट वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी वेरी हो रहा है, और सेकंड वाला उसमें भी वेरी हो रहा है ग्राफ पूरा। ओके, अब हम थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। फर्स्ट हम इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन को प्रूव करेंगे। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v है वेलोसिटी, u मीन्स v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। तो ये इक्वेशन को हमें प्रूव करना है। ये ग्राफ दिया गया है हमें, तो इसमें से सारी वैल्यू पहले लिखनी है हमें, फिर प्रूव करेंगे इसे। ओके, सो हियर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी u इज इक्वल टू ओ ए, मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को क्या बताया जा रहा है? ओ ए। ओके, देन फाइनल वेलोसिटी यानी v को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बी सी। और ये जो ग्राफ है मीन्स ग्राफ में से हमें पता चलता है कि बी सी क्या है? बी डी प्लस डी सी है। देयरफॉर v यानी फाइनल वेलोसिटी हमें क्या मिलेगी? बी डी प्लस डी सी। अगेन डी सी इज इक्वल टू ओ ए, तो डी सी की वैल्यू क्या बता रहे हैं? ओ ए, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। ओके, सो v इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 ओ ए इज इक्वल टू यू, उसमें से हमें इक्वेशन 1 से क्या पता चला कि ओ ए इक्वल्स टू यू है, सो v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू। सो वी शुड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी डी। नाउ वी नो दैट द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी, यानी ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप बताया जा रहा है तो वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एक्सेलरेशन क्या होता है? a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ए बी का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, और a इज इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई ए डी, बट ए डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू टी, यानी ए डी और ओ सी इक्वल है, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम। सो putting t in place of ad in the above relation we get a is equal to bd divided by time, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिली हमें? bd डिवाइड बाई टाइम, और bd इज इक्वल टू at, मतलब अगर t को ट्रांसपोज कर देंगे a के पास तो bd इज इक्वल टू at वैल्यू मिल जाएगी। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ bd इन इक्वेशन 4 वी गेट v इज इक्वल टू at प्लस u। तो इक्वेशन 4 में अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे bd की वैल्यू तो हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू at प्लस u, और ये क्वेश्चन को रीअरेंज कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा हमारा v इज इक्वल टू u प्लस ए डी, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. इट हैज बीन डिराइव्ड हियर बाय द ग्राफिकल मेथड. Now we are going to understand the second equation of motion, which is equation for position time relation, that is s is equal to ut plus half at square, जहाँ पे s है distance, u है initial velocity, t है time, and then half, then a represent कर रहा है acceleration and t square is representing time का square. Suppose ये ग्राफ दिया गया है तो उसमें क्या कंसिडर कर रहे हैं? An object has traveled a distance s in time t under uniform acceleration a. Then the distance traveled by the object is obtained by the area enclosed within OABC under the velocity time graph AB. Thus the distance s traveled by the object is given by s is equal to area of OABC, which is a trapezium. Okay, और वो ट्रेपेजियम किससे फॉर्म हो रहा है? रेक्टेंगल OADC और ट्रायंगल ABD के एरिया से फॉर्म हो रहा है ट्रेपेजियम. देन तो ट्रेपेजियम के एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल OADC का एरिया फाइंड करेंगे, देन ट्रायंगल ABD का एरिया फाइंड करेंगे, देन उसको प्लस कर देंगे. सो हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC का एरिया मिल जाएगा. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. तो जहाँ पे OA उसकी लेंथ है और OC उसकी ब्रेथ है. OA क्या है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी, एंड OC क्या है हमारा? टाइम. सो U इंटू T इज इक्वल टू UT. तो यहाँ पे इक्वेशन 5 मिल गया हमें. देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD फाइंड करेंगे.
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जहाँ पे ए डी है हमारा बेस और बी डी रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट. सो हाफ इंटू टी इंटू ए टी, यानी ए डी क्या दिया है टी और बी डी है ए टी. फर्स्ट इक्वेशन में से हमने क्या डिराइव किया था कि बी डी की वैल्यू ए टी आ रही है. सो बी डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी ए टी. सो हमें क्या मिल जाएगा आंसर, हाफ ए टी स्क्वायर. सो ये इक्वेशन 6 मिल गया हमें. सो डिस्टेंस ट्रेवल एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस area of triangle ABD. So, or what we can say, S is equal to UT plus half AT square. This is the second equation of motion and it has been derived here by the graphical method. Now we are going to understand the third equation of motion, which is equation for position velocity relation, and that is v square is equal to u square plus 2as, जहाँ पे v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, 2 देन a रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन एंड s रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस. ग्राफ है ये पूरा हमारा, तो इसमें से हमें वैल्यूज ऑब्टेन करनी है. डिस्टेंस ट्रेवल s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी. जो हमें डिस्टेंस मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, ट्रेपेजियम ओ ए बी सी से. और एरिया के ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. सो यहाँ पे हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स कौन सी पैरेलल साइड्स है, एक ओ ए है और एक बी सी है. सो ये इसका सम हो जाएगा. देन हाइट क्या दी गई है हमें, ओ सी, ये हमारी हाइट है ट्रेपेजियम की. एंड देन सो हम इसे सॉल्व कर देंगे, मीन्स हाफ इंटू ओ ए प्लस सी बी इंटू ओ सी. तो हमें वैल्यू मिल जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. नाउ ओ ए प्लस सी बी, ओ ए की वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज स्मॉल यू एंड सी बी की वैल्यू है फाइनल वेलोसिटी विच इज स्मॉल v. सो u plus v and OC की वैल्यू है t. And putting these values in the above relation, we will get s is equal to u plus v into t divided by 2. So this is our equation number 7. We now want to eliminate t from the above equation. This can be done by obtaining the value of t from the first equation of motion. Means ये जो equation दिया है, 7 equation दिया है, उसमें से हमें t हटाना है और उसकी जगह हम t की दूसरी वैल्यू भी लिख सकते हैं by using the first equation of motion, which is v is equal to u plus at and at is equal to v minus u, or we can say t is equal to v minus u divided by a. यहाँ पे t की वैल्यू मिल गई हमें, तो इसको हम 7th equation में substitute कर देंगे. So putting this value of t in the equation number 7 above, we get 2as is equal to v square minus u square, because v plus u into v minus u will be v square minus u square. So our answer will be v square is equal to u square plus 2as, and this is the third equation of motion. ये तीनों इक्वेशन है जो मोशन के, उसको अच्छे से लर्न करने के लिए 5 थिंग्स कॉमन होती है, एक s, एक u और एक v और एक t, एक a और एक t, जिसमें s होता है डिस्टेंस, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और t होता है टाइम. Now let's come to the exercise. Question number 1. An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. Means एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका डायमीटर कितना है 200 मीटर. तो ये जो सर्कुलर ट्रैक है उसका एक राउंड कंप्लीट करता है एथलीट वो इन 40 सेकेंड्स. सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड. 2 मिनट मीन्स कितना होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. सो 2 मिनट विल बी 120 सेकेंड्स. देन 120 प्लस 20 विल बी 140 सेकेंड्स. मीन्स हमें ये बताना है कि 140 सेकेंड्स के एंड तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है और क्या उसका डिस्प्लेसमेंट होगा. सो आंसर, given diameter of the track that is d is equal to 200 meter. Therefore the circumference of the track will be pi d. ऐसे तो circumference क्या होता है 2 pi r. So but यहाँ पे तो d दिया है, means diameter दिया, तो 2r is equal to d हो जाएगा. So यहाँ पे हमारा circumference क्या है pi d. It will be 200 into pi meters. 200 जहाँ पे diameter है और pi, so 200 into pi meters हमारा circumference हो गई ट्रैक का. डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड्स इज इक्वल टू 200 पाई मीटर. सो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो क्या होगा 200 पाई डिवाइड बाय 40.
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज करके क्या हो जाएगा 200 पाई डिवाइड बाई 40, इतना डिस्टेंस कवर करेगा एथलीट 1 सेकेंड में. सो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स दैट इज 140 सेकेंड्स. तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया है 140 इंटू 200 पाई डिवाइड बाई 40 मीटर्स. मीन्स 1 सेकेंड में 200 पाई मीटर पाई डिवाइड बाई 40 इतना डिस्टेंस कवर करता है. तो 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. सो 140 इंटू 200 पाई डिवाइड बाई 40 मीटर्स. सो इट विल बी 140 इंटू 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 40 एंड पाई की वैल्यू आ गई 22 डिवाइड बाई 7 मीटर्स. सो हमारा डिस्टेंस कवर क्या होगा 2200 मीटर्स. Then number of laps completed by the athlete in 140 सेकेंड इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 40. कैसे करेंगे, 40 सेकेंड में अगर 1 राउंड कंप्लीट करता है तो 140 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. देन 140 डिवाइड बाई 40 विल बी 3.5 राउंड्स. Therefore, the final position of the athlete with respect to the initial position is at the opposite end of the circular track. Therefore, the net displacement will be equal to the diameter of the track, which is 200 meter. Means हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सर्कुलर ट्रैक के केस में क्या होगा, डायमीटर ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट विल बी 200 मीटर. Therefore, the net distance covered by the athlete is 2200 meters and the total displacement of the athlete is 200 meters. Now our next question is, Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. मीन्स एक स्ट्रेट रोड है, कितने डिस्टेंस की है वो 300 मीटर. ठीक है, तो जोसेफ जॉगिंग कर रहा है, वो जो स्ट्रेट रोड है उसके 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी. तो जोसेफ ये पॉइंट्स के बीच में जॉगिंग कर रहा है. वो कितना मीन्स उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 300 मीटर इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड. 2 मिनट्स मीन 120 सेकेंड एंड 120 प्लस 30 दैट विल बी 150 सेकेंड. मीन्स 150 सेकेंड में उसने 300 मीटर डिस्टेंस कवर किया and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. मीन्स जब वो B पॉइंट पर पहुंच गया तो उसने फिर से 100 मीटर पीछे गया in 1 minute. मीन्स 60 सेकेंड्स में उसने 100 मीटर और कवर किया. सो वी हैव टू टेल व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम A to B and from A to C. So our answer is, given distance covered from point A to point B is equal to 300 meters. And the distance covered from point A to point C is equal to total distance covered, that is 300 meter plus 100 meter is equal to 400 meters. Then time taken to travel from point A to point B is equal to 2 minutes and 30 seconds, which will be 150 seconds. And the time taken to travel from point A to point C is equal to 2 minutes 30 seconds plus 1 minute, means 150 seconds plus 60 seconds, it will be 210 seconds. और एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. और एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. देयरफॉर द एवरेज स्पीड व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 300 जो डिस्टेंस है एंड 150 मीटर पर सेकेंड जो टोटल टाइम है. सो आंसर आ जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड. एंड एवरेज स्पीड व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू सी इट विल बी 400 विच इज टोटल डिस्टेंस and 210 meter per second which is total time. So average speed from while traveling from A to C is 1.9 meter per second. Then the average velocity while traveling from A to B, it will be 300, that is total displacement, and 150 meter per second is total time. So our answer is 2 meter per second. Then average velocity while traveling from A to C, it will be 200, which is total displacement, and 210 meter per second, which is total time. So average velocity while traveling from A to C is 0.95 meter per second. Now next question is, Abdul while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. Means अब्दुल जब अपने स्कूल जा रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है, मीन्स उसके ट्रिप की क्या एवरेज स्पीड है 20 km per hour. Then on his trip along the same route
देयर इज अ लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जब वो रिटर्न हो रहा है, अपनी ट्रिप से रिटर्न हो रहा है, तो वो वही सेम रूट को फॉलो कर रहा है, बट तब वहाँ पे लेस ट्रैफिक है, तो उसकी एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। सो हमें अब्दुल की टोटल एवरेज स्पीड बतानी है। सो आवर आंसर इज distance traveled to reach the school is equal to distance traveled to reach home. That will be D. Means time taken to reach school is equal to T1. स्कूल में जब वो पहुंच रहे तो उसका टाइम टेकन को कितना ले रहे हैं हम, T1. एंड द टाइम टेकन टू रीच होम इज इक्वल टू T2. Therefore, average speed while traveling to school while going to school is equal to total distance traveled divided by total time taken. That will be D. Means distance divided by time 1 is equal to 20 km per hour, and the average speed while going home is equal to total distance travelled divided by total time taken, and that will be D. Means distance divided by T2 time 2 is equal to 30 km per hour. Therefore, T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, D divided by 20 and T2 is equal to D divided by 30. ट्रांसपोज कर दिया, ओके, तो वैल्यू आ जाएगी T1 की D divided by 20 and T2 की वैल्यू आ जाएगी D divided by 30. Now the average speed for the entire trip is given by total distance traveled divided by total time taken. So that will be D plus D, तो वो 2D हो जाएगा, divided by T1 plus T2 किलोमीटर पर आवर. So D plus D हो जाएगा 2D and divide by D divide by 20 plus D divide by 30. ये किसकी वैल्यूज है, T1 और T2 की. सो आंसर हमारा आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 5 किलोमीटर पर आवर एंड डेट विल बी 24 किलोमीटर पर आवर. Therefore, Abdul's average speed for the entire trip is 24 km per hour. Now our next question is, a motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3.0 meter per second square for 8.0 seconds. How far does the boat travel during this time? मीन्स एक मोटर बोट है, वो रेस्ट में थी, फिर वहाँ से वो स्टार्ट करने लगती है अपना मोशन ऑन अ लेक एंड देन एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन. उसका एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, वो भी कांस्टेंट रेट के साथ ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8.0 सेकेंड तक के लिए. सो हमें बताना है कि बोट ने ये टाइम तक के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया होगा. सो आंसर गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बोट. इनिशियल वेलोसिटी क्या है बोट की, 0 मीटर पर सेकेंड, और बोट का एक्सेलरेशन क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम पीरियड इज गिवन 8 सेकेंड. सो एज पर द सेकेंड मोशन ऑफ इक्वेशन, एस विल मीन्स डिस्टेंस विल बी ut plus half at square. Okay, therefore the total distance traveled by boat in 8 seconds is equal to 0 plus half, means u की वैल्यू रखी 0, t की वैल्यू रखी, सॉरी ये हाफ है, t की वैल्यू वो 8 सेकेंड थी, तो वो 0 इंटू 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस हाफ, देन a की वैल्यू क्या है 3, मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 3, एंड t की वैल्यू 8 है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा. तो आंसर आ जाएगा 96 मीटर. Therefore the motorboat travels a distance of 96 meters in a time frame of 8 seconds. Now question number 5. A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. एक कार का ड्राइवर है, वो कार को ड्राइव कर रहा है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देन अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, और फिर कार स्टॉप हो जाती है 5 सेकेंड के बाद. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. मीन्स दूसरे कार का ड्राइवर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार ड्राइव कर रहा है एंड देन अप्लाइज द ब्रेक स्लोली, एंड 10 सेकेंड के बाद उसकी कार है वो स्टॉप हो जाती है. ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेज टाइम ग्राफ फॉर द टू कार. दोनों कार का स्पीड वर्सेज टाइम ग्राफ एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, and we have to answer that which of the two cars travel farther after the brakes were applied. ब्रेक्स अप्लाई होने के बाद में ये बताना है कि दोनों कार में से कौन सी कार ने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया. सो आवर आंसर इज इनिशियल स्पीड ऑफ कार ए. कार ए की इनिशियल स्पीड क्या है 52 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया है बस, बट इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो करना चाहे तो 52 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो हमारा आंसर आ जाएगा 14.44 मीटर पर सेकेंड.
ये कार ए की इनिशियल स्पीड होगी। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, दैट इज द फाइनल स्पीड ऑफ कार v इज इक्वल टू 0 एंड टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड फॉर स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ कार ए। मीन्स कार ए में फाइनल स्पीड उसकी क्या होगी 0, बिकॉज ब्रेक अप्लाई हो गया, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी, फाइनल पोजिशन, फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी और टाइम लिया गया है 5 सेकेंड का। सो स्पीड टाइम ग्राफ कार ए का क्या होगा, दैट इज 14.4 मीटर पर सेकेंड, वो उसकी इनिशियल स्पीड है, 0 उसकी फाइनल स्पीड है और टाइम टी क्या है 0 और फाइनल स्पीड का क्या है टाइम टी 5। सो इनिशियल स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। कार बी की इनिशियल स्पीड क्या दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 5/18 कर देंगे। सो कार बी की इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी 0.83 मीटर पर सेकेंड। देन द कार स्टॉप्स इन 10 सेकेंड, दैट इज द फाइनल पोजिशन ऑफ कार बी इज इक्वल टू, कार की फाइनल स्पीड v हो जाएगी बिकॉज ब्रेक अप्लाई किया गया, एंड द कार स्टॉप्स इन 10 सेकेंड, मीन्स टाइम इंटरवल क्या हो गया 10 सेकेंड का। सो फॉर स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ कार बी, the initial speed is 0.83 meter per second and the time taken is 0 and the final speed of the car B is 0 and the time taken for that final speed is 10 seconds. So now we have to plot this speed versus time graph on the graph paper. Okay, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है O, D और E। यहाँ पे हमें इनिशियल स्पीड हमने पहले फाइंड की कार ए की, दैट इज 14.4 मीटर पर सेकेंड, जो 14 और 5 के बीच में मिलेगा हमें, और उसका टाइम कितना मिला हमें 5 सेकेंड, तो वो प्लॉट कर देंगे तो हमें एक ट्रायंगल फॉर्म मिल रहा है, दैट इज O, C और D, जिसमें OD बेस है और OC हाइट है। देन कार बी की क्या स्पीड दी गई है 0.83 मीटर पर सेकेंड, वो 0 और 1 के बीच में हमें मिल जाएगी, और उसका टाइम कितना दिया गया कार बी का 10 सेकेंड्स। सो यहाँ पे प्लॉट कर देंगे तो कार बी का हमें ट्रायंगल एक फॉर्म मिल रहा है, दैट इज O, E और F। अब कैलकुलेट करेंगे हम उसकी, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन सी कार ने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। So distance traveled by the car A is equal to area of triangle OCD, where half triangle का area क्या होता है half into base into height. So half into OC into OD, that will be half into 44 into 5. So our answer will be 36.1 meter. And the distance traveled by car B is equal to area of triangle OEF is equal to half into OE into EF is equal to half into 0.83 into 10, and that our answer will be 4.15 meter. Thus the car A traveled farther than car B after the brakes were applied. ब्रेक अप्लाई होने के बाद में कार A ने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। Now next is question number 6. This figure shows the distance time graph of 3 objects A, B and C. 3 ऑब्जेक्ट्स है A, B और C, तो उनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मोशन बताया जा रहा है। ए को रिप्रेजेंट कर रहे ग्रीन लाइन से, बी को रिप्रेजेंट कर रहे रेड लाइन से और सी को रिप्रेजेंट कर रहे ब्लू लाइन से। ये ग्राफ को स्टडी करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ए, विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, मीन्स ये 3 ऑब्जेक्ट्स में से सबसे फास्टेस्ट स्पीड किसकी है, सिंस, सो आंसर इज सिंस द स्लोप ऑफ लाइन बी इज द ग्रेटेस्ट, बी इज ट्रेवलिंग एट द फास्टेस्ट स्पीड, मीन्स द ऑब्जेक्ट फॉर which slope of distance time graph is maximum will have maximum speed, that is will travel the fastest. So here for object B, slope is maximum, so it is traveling the fastest. B1, are all three ever at the same point on the road, means road में वो तीनों ऑब्जेक्ट्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे सेम पॉइंट पे, सो हमारा आंसर क्या होगा नो, सिंस द 3 lines do not intersect at a single point, the 3 objects never meet at the same point on the road. Means all the 3 objects will be at the same point on the road if the speed time graph intersect each other at any point. Here all the 3 graphs do not intersect each other, so these 3 will never be at the same point on the road. Now C1, how far has C traveled when B passes A? यानी जब B A को पास कर रहा है तो C ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, so when B passes A, the distance traveled by C is equal to 9.6 minus 2 is equal to 7.6 kilometer.
मीन्स बी ए को कब पास कर रहा है, ये वाली लाइन पे, ओके। तो वहाँ पे सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, देखो बी ओरिजिन से पास हो रहा है, बट सी कहाँ से पास हो रहा है, उससे 2 यूनिट ऊपर से पास हो रहा है। सी की लाइन ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर से पास हो रही है। सो यहाँ पे जब बी ए को पास करिए तो तब 9.6 था, तो 9.6 माइनस 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.6 किलोमीटर। मीन्स जब बी ए को पास करेगा तो सी ने 7.6 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा डिस्टेंस। नाउ D1, हाउ फार हैज बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासिस सी। मीन्स जब सी को पास कर रहा था बी, तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी व्हेन इट पासिस सी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब बी सी को पास कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस होगा उसका, 6 किलोमीटर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। मीन्स एक बॉल को 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है नीचे। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। मीन्स जब उसको ड्रॉप किया गया है 20 मीटर की हाइट से, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वो भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें बताना है कि कितनी वेलोसिटी पे वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा बॉल, एंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने टाइम पे वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे। मीन्स फाइनल वेलोसिटी बतानी है और देन उसके बाद में टाइम बताना है। सो आंसर, गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल दैट इज u इज इक्वल टू 0। क्यों इनिशियल वेलोसिटी को 0 क्यों लिया है, बिकॉज वो रेस्ट की पोजिशन में था, फिर उसको ड्रॉप किया गया। देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल दैट इज s इज इक्वल टू 20 मीटर। Then acceleration is equal to 10 meter per second square, and as per the third equation of motion, तो हमारे पास क्या है थर्ड इक्वेशन मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे हमें v स्क्वायर मीन्स फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इसलिए हम u स्क्वायर को वहाँ पे मीन्स RHS पे ट्रांसपोज कर देंगे। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन a की वैल्यू क्या बताइए, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बताइए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड s की वैल्यू मीन्स डिस्टेंस क्या है 20 मीटर, एंड u को ट्रांसपोज कर दिया, मीन्स 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। सो इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। देन v स्क्वायर है तो रूट उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, सो देयरफॉर v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। देन टाइम बताना है, द बॉल हिट्स द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एज पर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देयरफॉर यहाँ पे हमें टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है, इससे t इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई ए हो जाएगा। सो v की वैल्यू क्या है 20 और u की मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, देन मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है हमारा एक्सेलरेशन। सो टाइम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 सेकेंड्स। देयरफॉर द बॉल रीचेस द ग्राउंड आफ्टर 2 seconds. Now question number 8, the speed time graph for a car is shown in this figure. एक कार का स्पीड टाइम ग्राफ ये फिगर में बताया गया है। सो हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ए, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। मीन फर्स्ट 4 सेकेंड में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो पहले फाइंड करना है। देन शेड द एरिया ऑन द ग्राफ that represents the distance traveled by the car during the period। मीन्स 4 seconds में जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है कार ने, तो वो एरिया ग्राफ में शेड कर देना है। सो आंसर, द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार ओवर टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड। 4 सेकेंड तक के टाइम पीरियड में ये जो एरिया शेड किया गया है वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, ओके। देन इट कैन बी कैलकुलेटेड एज हाफ इंटू 4 इंटू 6, जहाँ पे 4 क्या है बेस और जो 6 है वो हाइट। मीन्स इसको हम ट्राइंगल कंसिडर करें तो 4 को हमने बेस लिया और 6 को हाइट लिया, तो हाफ इंटू 4 इंटू 6, सो आवर आंसर विल बी 12 मीटर। मीन्स 12 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। देयरफॉर द कार ट्रेवल्स अ टोटल ऑफ 12 मीटर इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। नाउ बी, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। ग्राफ को कौन सा पार्ट शो कर रहा है कार का यूनिफॉर्म मोशन। सो आंसर क्या आएगा, since the speed of the car does not change from the point x is equal to 6 and x is equal to 10, then the car is said to be in uniform motion from the 6 to 10 seconds.
मीन्स कार की स्पीड जो है वो 6 से लेके 10 सेकेंड तक बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, मीन्स वो यूनिफॉर्म रह रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो 6 to 10 सेकेंड तक के बीच का जो मोशन है कार का वो यूनिफॉर्म है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेड विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दिस। ये तीनों सिचुएशंस में बताना है कौन सी पॉसिबल है और तीनों का एक एक एग्जाम्पल देना है। फर्स्ट इज an object with a constant acceleration but with zero velocity. So this situation is possible when an object thrown up into the air has a constant acceleration due to gravity acting on it. Means अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो किया तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा ड्यू टू ग्रेविटी. However, when it reaches its maximum height, its velocity is zero. Means certain height तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, बट जब उसकी मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगी तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. फॉर सपोज बॉल को ऊपर एयर में थ्रो किया तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, बट मैक्सिमम हाइट में जब वो पहुंच जाएगा बॉल तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. सो द सिचुएशन दैट when an object with a constant acceleration but with zero velocity is possible. Now second situation, an object moving with an acceleration but with uniform speed. So this situation is impossible because when acceleration implies an increase or decrease in speed. Acceleration क्या होता है, स्पीड में इंक्रीज लाता है या तो डिक्रीज, and uniform speed implies that the speed does not changes over time. और यूनिफॉर्म स्पीड क्या बताता है, वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, उसकी स्पीड उसकी टाइम के साथ चेंज नहीं होती. So this situation is impossible. Now third situation, an object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction. So this situation is also possible when an aeroplane flies in a horizontal direction, but the acceleration due to gravity acting on it in vertically downward direction, that is along the direction perpendicular to the direction of motion. Means अगर एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लाई हो रहा होता है तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. सो जो एरोप्लेन का डायरेक्शन जहाँ पे वो मूव हो रहा है मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है एरोप्लेन का, और एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. सो द सिचुएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन with an acceleration in the perpendicular direction is possible. Now question number 10. An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 km. Means एक artificial satellite circular orbit जिसका radius कितना है 42,250 km के पास move हो रही है. Then calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. उसकी speed calculate करनी है अगर वो 24 आवर में अर्थ का रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है. ओके, टाइम गिवन है हमें और रेडियस भी गिवन है. सो आंसर इज गिवन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू 42,250 किलोमीटर. देयरफॉर circumference of the orbit will be 2 pi r. Then 2 pi is, and we have given the value of radius that is 42,250 किलोमीटर. देन इसको कैलकुलेट करेंगे 2 pi r को तो हमारा circumference क्या होगा ऑर्बिट का 2,65,571.42 kilometer. Then time taken for the orbit is equal to 24 hour. Therefore speed क्या होगी सैटेलाइट की, circumference जो हमारा टोटल डिस्टेंस है और टाइम दिया गया है हमें 24 आवर. सो स्पीड हमारी हो जाएगी circumference डिवाइड बाय टाइम. तो हमारा आंसर आ जाएगा 11,065.4 किलोमीटर पर आवर. सो द सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट अ स्पीड ऑफ 11,065.4 kilometer per hour. Thank you for watching and listening this video patiently. I hope आपके इसमें सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे. So if you really understand this chapter, then please do like and comment. Till then, bye bye, and we will meet in the next video.